Good morning, students. Welcome back to maths class. Okay, today we will discuss new topic of integration, that is integration by partial fraction. But before that, I want to discuss again with you, or you can say that recapitulate the basic formula which we have done last time. That is integration, which is in the form of 1 upon quadratic especially. So there are 1 upon quadratic or 1 upon under root quadratic. We have done 6 formulas. So first one is that integration of 1 upon x square minus a square. So you know 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. Beta ab ye yaad rakhne formula. That is why I am revising here. Second one 1 upon a square minus x square. ठीक है, फर्स्ट वन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव था और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव हो गया. 1 upon a square minus x square, तो little bit change. 1 upon 2a log a plus x upon a minus x plus c. And third one is integration of 1 upon x square plus a square equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. Correlate this. We have already done 1 upon 1 plus x square, that is tan inverse x. So here 1 by a tan inverse x by a. The next one is 1 upon, now these are the 3 without under root. Now these 3 formulas with the help of under root, you can see now. 1 upon under root x square minus a square, first formula under root आ गया. ठीक है, so now this become log of x plus same term plus c, and then dx upon under the root a square minus x square, you can see second and fifth same, only is the difference of under root. So this becomes sin inverse x by a. You can correlate this formula with integration of under root 1 upon under root 1 minus x square, that is sin inverse x. So if a square then sin inverse x by a. बेटा फोकस करिए, यहाँ 1 by a है लेकिन इसमें बाहर 1 by a नहीं आता है. And last one is 1 upon integration of under the root x square plus a square, that is log of x plus under the root x square plus a square plus c, means log of x plus same term. ये दोनों ये है, फोर्थ और सिक्स्थ सेम है बिल्कुल, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस और जहाँ प्लस है वो प्लस, और ये आपको मैंने कहा साइन इनवर्स के साथ कोरिलेट कर लीजिए. क्लियर हो गया? सो आई होप you have learned this formula, because last time we have already discussed this formula with proof. ठीक है, and also question related to this formula. ठीक है, स्पेशल टाइप बोलने का मतलब आपको बताया था कि 1 upon quadratic. क्वाड्रेटिक में बेटा जो मेन कंसेप्ट है, आपको कंप्लीट स्क्वेयरिंग आनी चाहिए. कंप्लीट स्क्वेयरिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी 1. सो टू मेक इट 1, टेक दिस a कॉमन. अगर यहाँ प्लस है चाहे माइनस है, -1 है, -2 है या प्लस है, टेक दैट कॉमन. You will get x square plus b upon a x plus c. Then see these two terms, and to complete squaring, you know that adding and subtracting half of the coefficient of x their square, that is b by 2a whole square आपने ऐड करना है और subtract. और अगर यहाँ प्लस होगा तो ये प्लस का स्क्वायर बनेगा, अगर यहाँ माइनस होगा बेटा तो माइनस का स्क्वायर, और आगे कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करना. सिंप्लीफाई करने के बाद आपको बताया कि ये बन गई टी स्क्वायर प्लस ये कोई कांस्टेंट. ठीक है, तो वही बात है, ये टी स्क्वायर प्लस माइनस टी स्क्वायर फॉर्म आ जाएगी. यही प्रोसेस अगर यहाँ अंडर रूट होगा तब भी है. तो बोलने का मतलब इसलिए बी श्योर कि आपको आता है. ये देखो ये वाला टाइप आपको दे दिया 8 करके, एज यूजुअल आपने ये करना है. नेक्स्ट आपको ये टाइप भी मैंने डिस्कस कर लिया था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. क्या होगा अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक या अंडर रूट क्वाड्रेटिक. तो वेव बताया था कि पुट दिस लीनियर इक्वल टू a टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, क्योंकि ऊपर अगर डेरिवेटिव आ जाएगा यू नो द इंटीग्रेशन.
अगर बिल्कुल ऐसे ही होगा तो लॉग में आ जाएगी इंटीग्रेशन, लेकिन अगर अंडर रूट वाला टाइप होगा तो फिर वो फंक्शन रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स, तो इसलिए स्प्लिट करते हैं प्लस कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट आता है तो बिल्कुल वही टाइप हो गया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो आई होप ये टाइप आपको अच्छे से माइंड पे बैठ गया होगा। ये देखो लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो ये बोलने का मतलब टोटल 6 फार्मूलाज, ठीक है। 6 फार्मूलाज के बाद 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, टू दिस टाइप, तो 6 और 2 8, एंड नेक्स्ट टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो बेटा यही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। अगर फिर भी कोई डाउट है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन अ शॉर्ट रिवीजन। तो अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज का ही ले रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन? सी 23rd 10, ठीक है। क्या है? लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, मोर जनरल है। कोई भी क्वेश्चन देखो, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये सारे सेम है। ये भी लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये भी लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक। उनके अलावा 1 2 3 4 5 छठा ये क्वेश्चन। तो पिछली बार अगर आप लोगों ने कर लिए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो आप लोगों को ये प्रोसेस फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या होगा, ठीक है। लीनियर अपॉन, इसलिए अच्छे से कर लेना। देखो क्या प्रोसेस है, जब मैंने बताया था लीनियर होगी, नीचे चाहे क्वाड्रेटिक हो या अंडर रूट क्वाड्रेटिक, इस लीनियर को ऊपर डेरिवेटिव बनाना है। तो इसके लिए सीधा रटा रटाया बेटा स्टेप बता देते हैं। क्या कि पुट 5x + 3 इक्वल टू a टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक नीचे देखो x² + 4x + 10 है। मैंने आपके लिए ये सॉल्व करके रख लिया यहीं पर क्वेश्चन। सो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² + 4x + 10 + b, ठीक है। इसका डेरिवेटिव यू नो 2x + 4, x² का डेरिवेटिव 4x का 4, a एज यूजुअल प्लस b। आगे बेटा इसको ओपन कर लो तो ये बन गया 2ax और 4a + b। होने का मतलब यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही लीनियर टर्म बन गई, आपने सेपरेट कर लेना है। अपसेट ऑफ x यहाँ 2a है, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म। एंड नाउ इक्वेटिंग दिस 2a = 5, 2a = 5 मीन्स a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5/2, और दूसरा कांस्टेंट टर्म 4a + b = 3। ये हर क्वेश्चन में होगा। So this implies b = 3 - 10, that is -7. Sometime candidate डायरेक्ट भी इसको स्प्लिट कर देते हैं। ओके, अगर आपको इजी लगता है यू कैन स्प्लिट दैट आल्सो, अदरवाइज दिस वन इज द बेस्ट वे किसी भी क्वेश्चन को जब आपने स्प्लिट अप करना है। So now you will get the value of from here a, that is 5/7 and b = -7। अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू अब है तो ये यहाँ पुट करनी है बेटा। a means this, क्या 5/7 into 2x + 4 और b means -7। तो इस 5x + 3 की जगह, इसकी जगह मेरे को ये लिखना है, a की जगह 5/7 और b की जगह -7। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया। Therefore this integration I, ये अगर I में कहता हूँ तो this integration I become what 5/2, और ये देखो a की वैल्यू थी 5/2, 2x + 4 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक जो भी है dx प्लस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट की वैल्यू हमने -7 निकाली, तो -7 अपॉन अंडर रूट में तो वही रहेगा नीचे, ठीक है। हमने तो जस्ट न्यूमरेटर को लिखा, क्या न्यूमरेटर को लिखा 5/2 × 2x + 4 -7, डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया। नाउ सी बेटा, ये जो टाइप बन रहा है ये आपके पास देखो ऊपर डेरिवेटिव है इसका, लेकिन नीचे अब ये नीचे अंडर रूट के साथ है, अंडर रूट के साथ है, तो ये ऊपर अगर टर्म आएगी तो ये बनेगी क्या, बोलने का मतलब ये वाली फॉर्म बनेगी x² + 4x एंड +10 रेज टू पावर क्या बन जाएगा -1/2, ये बनेगा ऊपर जाके, और आगे इसका डेरिवेटिव। तो बोलने का मतलब ये हमारे पास ये टाइप बन गया कि फंक्शन रेज टू पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये फार्मूला आप लोगों ने बेटा इंटीग्रेशन की है, क्या होता है फंक्शन रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, तो वही यूज कर रहा हूँ मैं। देखो 5/2 एज यूजुअल है, फंक्शन मेरे पास क्या था x² + 4x + 10 की पावर -1/2 + 1 करेंगे,
तो प्लस 1 करने का मतलब सिंपल 1/2 बचेगा, 1/2 बचने का मतलब ये अंडर रूट जो मैंने यहाँ लिख दिया, और डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 दैट इज 1/2, ये आ गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ये टर्म बचेगी 5 × दिस। और आगे वाली टर्म को बेटा अगर देखें -7, तो मैंने बताया कंप्लीट स्क्वेयरिंग करनी है, 1/√, क्वाड्रेटिक आ गया। तो 1/√, क्वाड्रेटिक वाले देखो कितने क्वेश्चन है, ये 1/√, क्वाड्रेटिक, ये 12th 1/√, क्वाड्रेटिक, 14th 1/√, क्वाड्रेटिक, 13th 1/√, क्वाड्रेटिक, 15th 1/√, क्वाड्रेटिक। ये प्रैक्टिस तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब अपनी कुछ नहीं करना, कंप्लीट स्क्वेयरिंग करनी। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट स्टेप तो आपको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट 2 को ही देखना है। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ, हाफ, मतलब यहाँ 4 है उसका हाफ करेंगे तो 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, 2 का स्क्वायर अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 4, और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -4, तो 10 - 4 6 हो गया। तो इसलिए ये पहले वाला बन गया x + 2 होल स्क्वायर, है ना, इसमें जो 2 स्क्वायर तक ऐड हुआ, बीच में प्लस होगा x में, तो x का कोएफिशिएंट तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस, और प्लस √6 का स्क्वायर। और इसका बेटा आपको फार्मूला आता ये है, लास्ट फार्मूला जो बताया था, 1/√x² + a²। तो क्या होती है इंटीग्रेशन, log ऑफ x प्लस सेम टर्म। तो सेम टर्म देखो, इसको सिंप्लीफाई करके x² + a², इसको सिंप्लीफाई करके यही आना है x² + 4x + 10। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया ये इसका। So this one is the answer. -5 quadratic -7 log of x plus quadratic. You hope you get this point. ठीक है, you got this point. So it means आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। अगर रह गई हो किसी को तो फिर मैंने आपको ये फिर समझा दिया, हिंट दे दिया। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे वाला टाइप है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें फोकस करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। आपके ध्यान दें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन किस में यूज होनी है, फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन में देखो अभी तक आप लोगों को बेटा जो इंटीग्रेशन जाती है, मैं सिंपल वे पे कहूँ, आपको 1/लीनियर की क्लियर हो गई, 1/क्वाड्रेटिक की क्लियर हो गई, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की क्लियर हो गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो अभी तक आपको नहीं बताया, या ऊपर क्यूबिक होगा नीचे क्वाड्रेटिक होगा, नहीं डिस्कस किया, या ऊपर क्यूबिक हो नीचे क्यूबिक हो, कुछ नहीं डिस्कस किया। हाँ, बहुत हायर पावर में जाने का तो कोई मतलब नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखते हैं तो डिग्री 3 और 4 तक ही जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं, बड़े रेयर में चलो 5-6 में चलेंगे, वो भी अगर कुछ करते हो। तो बोलने का मतलब आज का जो हमारा मोटिव है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मींस रैशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट, ये रैशनल फंक्शन है px/qx, तो इन फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, हमने पूरी तरह इसके ऊपर स्ट्रेस दिया। तो px और qx क्या हो गए, पोलिनोमियल, एंड qx नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू विल सी, ठीक है, रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन में सबसे पहले आपने चेक करनी है डिग्री ऑफ दिस न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ px, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ qx। If the degree of px is less than degree of qx, मतलब अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी, then that fraction is called proper fraction। जैसे हम कहते थे ना फ्रैक्शन की बात, अगर आपका न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन, अदरवाइज वो क्या होती थी, इम्प्रॉपर। तो सेम वे पे यहाँ डिग्री को लेकर अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है तो दैट रैशनल एक्सप्रेशन इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन, अगर नहीं है तो फिर इम्प्रॉपर, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। तो इट मीन बेटा जब भी आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, बोलने का डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ px अगर आपके पास ज्यादा होगी किससे, बोलने का चाहे ग्रेटर देन और इक्वल डिग्री ऑफ किससे, डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपने बेटा पहले डिवाइड करना है, इक्वल भी होगा तब भी आपने डिवाइड करना है। डिवाइड जैसे देखो आपको पता है, सिंपल मैं याद दिलाऊं,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोअर क्लास में पढ़ते, जैसे ये 4/3 था, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए पहले डिवीजन करते थे, ठीक है, प्रॉपर में लाने के लिए। तो 3 से डिवाइड किया जाता था, 3 1 जा 3 और ये रिमाइंडर 1, और इसको बाद में लिखता था कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस 1 and 1/3। तो वैसा ही काम बेटा आपने डिवीजन करना। तो डिवीजन जब आपको करते हैं तो आपको डिवीजन एल्गोरिदम याद है, जब आप px को qx से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, आपको पता है कि px इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू px क्या हुआ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मान लो qx है आपके पास या gx है, डिवाइजर आपका अगर gx है तो, और कोशिएंट आपका qx है, और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा कोशिएंट से लेस होती है, ठीक है ना, मैं फिर बता, सॉरी, डिवाइजर से लेस होती है। ये आपका px, यहाँ आपका gx आएगा, और यहाँ आपका पास qx आएगा, ये, और यहाँ आपका रिमाइंडर आएगा। तो हमारा डिवीजन कहाँ खत्म होता है, जब डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो आपने हमेशा डिवाइड करना है, और जैसे ही फिर रिमाइंडर की डिग्री लेस बच जाएगी तो वहां छोड़। तो आपके पास जब px अपॉन क्या होगा gx, तो वो क्या बन जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय gx और दिस आल्सो डिवाइडेड बाय gx। डिवाइड करने से gx कट गया, मतलब qx प्लस वही जो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, qx प्लस रिमाइंडर अपॉन gx। तो ये जो बेटा रिमाइंडर अपॉन gx बनेगा, ये लिखा इसने यहाँ पर px अपॉन qx, अगर ये इम्प्रॉपर है तो इसको डिवाइड करके ये इसका कोशिएंट लिखा है tx प्लस p1x अपॉन qx, और ये इसका रिमाइंडर। तो बोलने का मतलब यस, ये तो सिंपल पोलिनोमियल आया। जब इंटीग्रेशन की बात होगी तो सिंपल ही पोलिनोमियल की इंटीग्रेशन आपको आती है, और प्लस ये फिर रैशनल एक्सप्रेशन आ गई। अब ये कौन सी आई, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री अब लेस है। तो आज हमने बस इसको अब आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब डिग्री ज्यादा होगी तो उसका तो सोल्यूशन मिल गया हमें, इक्वल होगी तब भी सोल्यूशन मिल गया कि डिवाइड कर लेंगे जी। डिवाइड करने के बाद मैंने कहा कोशिएंट आएगा, वो तो एक सिंपल पोलिनोमियल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। यस, जो अगली प्रॉब्लम आई वो अगली प्रॉब्लम इसी की आई कि हाउ टू इंटीग्रेट दिस प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो प्रॉपर का मैंने बता दिया, क्योंकि आज का टारगेट क्या था, रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट। रैशनल फंक्शन क्या बताए, px अपॉन qx। मैंने कहा ये px अपॉन qx टू टाइप्स के फंक्शन, वन इज प्रॉपर एंड अनदर इज इम्प्रॉपर। अगर मैंने कहा ये इम्प्रॉपर होगा तो पहले आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, कोशिएंट मिलेगा प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर जो होगा वो फिर से प्रॉपर रैशनल, कोशिएंट आपका पोलिनोमियल है उसकी इंटीग्रेशन आती है। तो आज का टारगेट है मेरा कि ये जो अब सिचुएशन आएगी आपके पास क्या, कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसमें भी देखो टाइप मैंने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तक तो मेरे को आता है। यस, अब अगर ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होगा तो मैं डिवाइड करके फिर से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बनेगा, तो पिछले वाले से हो जाएगा। लेकिन यस, ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे क्यूबिक, ऊपर लीनियर नीचे क्यूबिक, ऊपर कांस्टेंट नीचे क्यूबिक। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम अब आएगी उनके ऊपर मैंने बेटा स्ट्रेस करना है, ठीक है। तो आज का मेन टारगेट इसी को करना है। तो ये देखिए अब आप लोगों को डिफरेंट टाइप, ये सिंपल टाइप हालांकि आप इसको कर चुके, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आपके पास एक वे आपका आ गया है। लेकिन यह सेकेंड अप्रोच है पार्शियल फ्रैक्शन से, बेटा इसको फिर आपने माइंड में बिठा लो अच्छे से। क्या बताया जा रहा है, ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के मतलब फैक्टर करने, जो डिनोमिनेटर है उसके आपने फैक्टर करने हैं। अगर फैक्टर करके देखो टू लीनियर फैक्टर आते हैं और डिस्टिंक्ट फैक्टर आते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी है, डिस्टिंक्ट फैक्टर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो नो डाउट आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। क्या करेंगे आप लोग, आप करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस। बोलने का मतलब इस चीज को बेटा आप लेट करेंगे कि दिस इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, क्योंकि देखो इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आएगा।
और ऊपर सॉल्व करेंगे a इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए आएगा, और बाद में इनको इक्वेट कर लेंगे, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, वहां से a और b निकालना सिखा देंगे। तो अभी तो आप सिंपल बेटा इसको स्प्लिट करना सीख लो। कैसे कि अगर नीचे ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लीनियर फैक्टर है दोनों, तो आपने सेपरेट कर लेना है क्या, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ठीक है, 3 होंगे तो प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। बोलने का मतलब कोई ये नहीं है उसमें प्रॉब्लम है, आगे दिया हुआ। ये देखो ये वाला थर्ड केस है, ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक, मतलब इम्प्रॉपर होना चाहिए। पहली चीज है इम्प्रॉपर होना चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। और जब ये इम्प्रॉपर होंगे डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लिए, तो देखो लीनियर फैक्टर या तो 2 बनेंगे या 3 बनेंगे। बस मैंने कहा बहुत ज्यादा काम हम नहीं करते हैं, डिग्री 4 में ज्यादा 4 बन जाएंगे। तो कुछ नहीं करना आपने, a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर, c अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर। अगर मान लो चौथा एक और फैक्टर ऐड हो जाता x माइनस डी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं इसको प्लस d अपॉन x माइनस डी कह दूंगा। वी गॉट माई पॉइंट। बोलने का मतलब ये चीज अब आप माइंड पे सेट कर लो, ठीक है, कि कैसे करना है, स्प्लिट करना अब क्या। तो इसका मतलब यस, नाउ यू नो अप टू हियर कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, मींस इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है। और जैसे ही इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है, फैक्टराइज दी डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को बेटा आपने फैक्टराइज किया। कैसे फैक्टराइज, लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर कितने, 2, 3 या 4, जितने भी फैक्टर आएंगे। अब आपके पास ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, इसलिए इसको पार्शियल कहते हैं। a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b अपॉन सेकंड प्लस c अपॉन थर्ड लीनियर, या d अपॉन फोर्थ लीनियर फैक्टर। ये प्रोसेस चलता है, तो मतलब बड़ी फ्रैक्शन की छोटी बन गई, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, तो लीनियर फैक्टर के लिए क्लियर कंसेप्ट। ओके, सेकंड टाइप पे जरूरी तो नहीं हमेशा ही लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड फैक्टर हो। जैसे नीचे मतलब क्वाड्रेटिक है, वो किसी चीज का कंप्लीट स्क्वायर है, लाइक दिस x माइनस ए होल स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपने क्या करना, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, देखो पहला लीनियर फैक्टर, प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से होल स्क्वायर लिया, पहले लीनियर लिया x माइनस ए और फिर x माइनस ए होल स्क्वायर। मान लो अगर बेटा यहाँ क्यूब होता, ऐसे क्यूब होता तो क्या करना था, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए होल क्यूब। तो ये इसकी फ्रैक्शन बन सकती है। देखो बेनिफिट क्या है कि इस तरह की फ्रैक्शन हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो अगर इन तीनों का मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा तो x माइनस ए क्यूब। अब चौथी पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर या तो x माइनस ए हो सकता है क्यूब के केस में, या स्क्वायर होगा, या फिर a का क्यूब होगा। x माइनस ए की 4 तो नहीं होगा, तो तब होगा जब यहाँ 4 होगा, तो आप प्लस d अपॉन एक्स माइनस ए 4। आई थिंक आपने रिपीटेड के लिए आपको जो जितनी बार रिपीट कर रहा है फैक्टर उतनी बार उसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी। जैसे यहाँ पहले स्क्वायर था तो स्क्वायर के लिए हमने 2 लिखी, x माइनस ए और x माइनस ए होल स्क्वायर। अगर क्यूब बनेगा तो x माइनस ए स्क्वायर x माइनस ए क्यूब। 4 बनेगा तो 4 पार्शियल फ्रैक्शन लिखनी है, x माइनस ए स्क्वायर x माइनस ए क्यूब x माइनस ए रेज़ पावर 4। तो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट आल्सो। देखिए सेम ही है, यहाँ आपके पास क्वाड्रेटिक है, नीचे अब क्यूबिक है, क्यूबिक के फैक्टर बन गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो आपको पोलिनोमियल के फैक्टर भी कितने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक का। अगर डिग्री 4 के आते होंगे तो सिंपल जो जैसे x4 माइनस ए 4 होगा, इस तरह से होगा कि x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, फिर उसके फिर फैक्टर कर दिया x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो लाइक दिस, इससे ज्यादा आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती है, वो भी हमारे पास प्रॉब्लम रहे। तो इसलिए ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ अगर आप देख रहे हैं 3 या बड़े हद से मैंने कब 4 दिया। यहाँ देखिए नीचे क्यूबिक है ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो यस इम्प्रॉपर है ये। अब आपके पास बेटा फैक्टर को देखो, अगर ऊपर कांस्टेंट भी होगी तो तब भी यही अप्रोच है, ऐसा कुछ नहीं कि ये ऊपर क्वाड्रेटिक चाहिए। अगर ये 1 अपॉन दिस ऐसे भी होगा तब भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। बस बोलने का मतलब रहनी चाहिए इम्प्रॉपर।
अब यहाँ क्या है, एक रिपीटेड फैक्टर है x माइनस ए होल स्क्वायर और दूसरा लीनियर फैक्टर एक और है। तो बिल्कुल ये है, रिपीटेड के लिए मैंने आपको बताया इसको दो बार लिखना, एक बार a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और ये एक और लीनियर फैक्टर तो इसके लिए प्लस सी अपॉन दिस लीनियर फैक्टर, लाइक दिस आप लोग लिख लें। क्लियर हो गया? कुछ नहीं है, जब आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे आपके माइंड में ये एल्गोरिदम अच्छे से बैठ जाए। ठीक हो गया? उसके बाद अब देख लो, मैंने अभी दो चीजें की, एक कि डिनोमिनेटर के फैक्टर सारे लीनियर है, तो a अपॉन फर्स्ट लीनियर प्लस b अपॉन सेकंड लीनियर प्लस c अपॉन थर्ड लीनियर प्लस d अपॉन फोर्थ लीनियर, यही प्रोसेस रहेगा। और दूसरा टाइप मैंने बताया कि रिपीटेड फैक्टर है कि a अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है, साथ में x माइनस बी है, साथ में x माइनस सी है, तो क्या होगा, होल स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके दो फ्रैक्शन बनेगी, एक a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c अपॉन जो अनदर टू फैक्टर है, मतलब फर्स्ट आएगा प्लस d अपॉन अनदर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, लाइक दिस। क्लियर? ओके, तो 4 टाइप आपको ये क्लियर हो गया। अब आगे मतलब कायदे से 2 ही टाइप है। अब आपके पास आ जाओ इस टाइप में, इसमें क्या दिया गया कि अब मैं फिर कह रहा हूँ, ऊपर क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो या कुछ भी है, डिग्री बस लेस होनी चाहिए, लेकिन अगर मेरा बोलने का क्वाड्रेटिक भी होगी तब भी आप जा सकते हैं, लेकिन क्यूबिक अपॉन क्यूबिक होगी तो डिवाइड कर। अब देखो नीचे वाले फैक्टर क्या हुआ, एक लीनियर बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेटिक है, इररिड्यूसिबल, मतलब जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसका फैक्टर नहीं बन सकता, जैसे मेरे पास टर्म आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक ही रहेगी। ठीक है, तो बोलने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी अगर फैक्टराइज नहीं करता, तो फिर दो फैक्टर बने, पहले को अलग करो, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब बेटा जो दूसरा है नीचे आ रही है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फ्रैक्शन में ऊपर लीनियर भी आ सकती है मैक्सिमम। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ऊपर लीनियर, तो आपने मैक्सिमम काम करना होता है, तो अगर ऊपर लीनियर आ सकता है, क्योंकि देखो इनका एलसीएम यही बनना चाहिए जो इधर, तो इसका मतलब ऊपर आपने लीनियर के बजाय, अब पहले तो देखो कांस्टेंट लिख रहे थे, जब यहाँ लीनियर तो 1 डिग्री कम, जब क्वाड्रेटिक है तो 1 डिग्री कम का मतलब लीनियर बी एक्स प्लस, तो बोलने का मतलब जब इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो ऊपर आपने क्या लिखना है, बी एक्स प्लस सी लीनियर, कल को सी एक्स प्लस डी, मान लो दोनों ही ये होते, ये टर्म ना हो कि एक और आपका क्वाड्रेटिक ही होता, लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या चलो ये भी होता, इसको भी रहना दो, एक ए है एक ए है एक ए है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस, और फिर आगे एक मैंने ये और लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी करके, या कुछ सिंबल अलग कर लो, स्मॉल है, चलो ये स्मॉल है, तो इसके लिए यहाँ फिर क्या रहेगा, फिर लीनियर ऊपर आएगी, डी एक्स प्लस ई अपॉन नीचे जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो आपने प्रोसेस समझ लिया। बस बेटा ये आपके पास मतलब मेन आगे 3 टाइप का होगा, फर्स्ट आया कि डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर हो, सेकेंड आया रिपीटेड फैक्टर हो, और थर्ड आया इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। बस इनको आपस में मिक्स कर सकते हैं, लीनियर भी हो, रिपीटेड भी हो, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक भी। जब सिंपल लीनियर है ए अपॉन लीनियर प्लस बी अपॉन लीनियर प्लस सी अपॉन लीनियर, लेकिन अगर रिपीटेड साथ में है, जैसे जो भी आ रहा है, तो रिपीटेड को आपने अगर मान लो 2 टाइम है, मतलब स्क्वायर है या क्यूब है, तो ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फॉर्म पे, बी अपॉन पावर 2 के साथ, सी अपॉन पावर 3 के साथ, और अगर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में बस लीनियर टर्म लिखनी है और कुछ नहीं है। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट है ये जो अभी बताए, अच्छे से बेटा इसको माइंड में देखो, ये टाइप है dx और दिया हुआ है सिंपल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब बेटा ये आपके पास क्या है, नीचे दोनों लीनियर फैक्टर है, तो मैंने बताया जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन से अब इसको करना है, डिग्री न्यूमरेटर की चेक जरूर करनी है, तो ऊपर 1 है मींस ये तो इम्प्रॉपर ही है,
तो आपने क्या करना, ये 1/x+1 और x+2 को मैंने कहा स्प्लिट कर देना, a/x+1 प्लस b/x+2। आगे का वर्किंग क्या रहेगी, इस टर्म से आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मतलब इधर भी या तो एलसीएम ले लो, एक ही मतलब x+1 इंटू x+2 और कैंसिल कर दो, तो ऊपर क्या आएगा देखो, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 1, x+2 से 1 से कैंसिल होगा तो ये इंटू x+2 और b इंटू x+1। अगर मैं कहता एलसीएम लो तब भी यही आना था नीचे, तो कुछ भी कह लो आप। तो सिंपल वे पे मैं हमेशा यही कहूंगा कि जो यहाँ आपका डिनोमिनेटर होगा बोथ साइड इससे मल्टीप्लाई। अब ये टर्म बन गया। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर टू अप्रोचेस। वन, ये जो आपकी बुक में एज यूजुअल थी, एक और मैं इजी अप्रोच, इसमें क्या करना है देखो, आपको x की टर्म में इकट्ठी करनी है। बोलने का मतलब जैसे ये बना ax, ठीक है, प्लस यहां से बनेगा bx, ये बना a प्लस b इंटू एक्स, और कांस्टेंट अलग कर लो, क्या, प्लस 2a और प्लस b, ये दोनों किसके इक्वल है, 1 के, यही है। अब आपने कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है कि ये लेफ्ट और राइट इक्वल हो गए, तो यहाँ तो x की टर्म है नहीं, तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, और 2a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 1 के। आगे वैल्यू समझ। अब आपकी मर्जी है, देखो दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 2a माइनस a क्या बन जाएगा, a, और 1 माइनस 0 क्या बन जाएगा, 1, तो 2a माइनस a, सो दैट इज a इक्वल टू 1, इसमें पुट कर लो तो b की वैल्यू -1 मिल गई वैल्यू। वन ऑफ द अप्रोच इज दिस, यस, पहले क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं फिर सेकेंड अप्रोच। तो ये देखो, बोलने का मतलब ये फ्रैक्शन थी, इसकी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बनाया। बेटा देखो, ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का मतलब इसका एलसीएम वही आया, x+1 इंटू, देखो इक्वल रहेंगे मतलब x+2, ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, x+2 माइनस x-1, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है, और यहाँ ये आपका 2 था, 2 माइनस 1 दैट इज 1, आ रहा है क्या, तो बोल निकल, यस दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस पार्शियल फ्रैक्शन। अब बेटा जैसे ही मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो नाउ यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, मीन्स राइट साइड की इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन आती है लॉग ऑफ दिस 1/x की फॉर्म, लॉग ऑफ x+1। मैंने कहा था ax+1 होगा तो ये कोएफिशिएंट ऑफ a से डिवाइड भी हो, x से डिवाइड भी हो, माइनस लॉग ऑफ x+2, यस, आगे प्लस c, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n अपॉन n प्लस c। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इजी है ना? तो बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है बेटा, यस, बट प्रैक्टिस चाहिए फर्स्ट। क्या किया, वही a अपॉन फर्स्ट लीनियर, b अपॉन सेकेंड लीनियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कह दो, आपके पास इक्वेशन बनी, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करो, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करो, ठीक है, फिर उनको सॉल्व करो a और b। इसका सेकेंड अप्रोच, ठीक है, हालांकि वो सम टाइम बोलने का शॉर्टकट अप्रोच भी कही जाती है। क्या, जैसे ये x+2 है, तो मैं क्या करूं, पुट a और b की वैल्यू निकालने के, पुट x इक्वल टू -2, जैसे इसमें बेटा पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 इक्वल टू a इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2, तो शॉर्टकट इसलिए कहते हैं, प्लस b की जगह b इंटू -2 प्लस 1, ये बना, तो ये 0 हो गया, so 1 इक्वल टू -b, so this implies b इक्वल टू -1। अच्छा, दूसरा लीनियर फैक्टर x+1 है, ये इसके लिए ज्यादा कारगर है बोलने का, पुट x इक्वल टू -1, मतलब इसी फैक्टर को 0 बनाना है, x+1 को 0, तो x क्या बन जाएगा, -1। अगर ये 0 बन जाएगा फिर आपका, तो बचेगा क्या, 1 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, और आगे तो 0 ही बनना है, तो क्या बन गया, a इक्वल टू 1।
गॉट दिस पॉइंट? बोलो इजी है कि नहीं? तो आप इस अप्रोच को भी कह सकते हैं शॉर्टकट अप्रोच। ठीक है, अब इसी अप्रोच को मैं एक और बेसिक कह देता हूं। जब हम समझ ही रहे हैं, क्या करते हैं जब कैंडिडेट को क्वेश्चन समझ आ जाता है अच्छे से, ठीक है, बोलने का मतलब, तो ये जो शॉर्टकट अप्रोच है, बोलने का मतलब मैंने नीचे ये लिख दिया x+1, मेरे को पता है ये 2 बनने dx, यहाँ शॉर्टकट में करना बिल्कुल ठीक है। अभी तो आप स्टेप शो कर सकते हैं जब कॉम्प्रिहेंसिव, ये x+2 लिख दिए दोनों, x+1 और x+2। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? जब बेटा आपने x+1 लिखा है तो x इक्वल टू -1 अनदर में पुट करो, तो क्या बचेगा 1 अपॉन, क्या बचेगा अगर यहाँ -1 पुट करेंगे 1। और इधर देखो, जब x इक्वल टू x+2 लिखा है तो जो रिमाइंडर होगा उसमें x की वैल्यू -2 पुट करनी है, तो क्या बचा 1 अपॉन -2। एक मिनट स्टूडेंट्स, तो ये शॉर्टकट में जब आपने x+2 डिनोमिनेटर में लिखा है तो आपने x+2 इसमें पुट करना है। सो व्हाट यू विल गेट 1 अपॉन x+1, that is 1 upon -2 plus 1, that become -1। तो ये शॉर्टकट मिल गया। देखो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, यही आया था नीचे। मतलब स्टेप यही वाले रिपीट होते, बस वो वही है कि सिर्फ, एंड दिस वन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस लीनियर फैक्टर। अगर 3 होंगे तो सेम बेस है बेटा, अपने लिखना है वही एक फैक्टर। जैसे मान लो अगर यहाँ x+3 भी होता तो क्या करना था, आपके पास यहाँ x+3 भी होता तो यहाँ x+1 लिखा हुआ था। अब आपने जो x की वैल्यू -1 पुट करनी, वो किस में पुट करनी, इन दोनों। तो क्या बनना था 1 अपॉन 1 प्लस -1 + 2, वो तो 1 बना है, और -1 + 3 फिर एक साथ में इंटू में 2 बनना था, तो 1/2 लाइक दिस। तो बोलने का मतलब ये प्रोसेस आपके पास आगे तक काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब लाइव क्लास होगी तो एक बार हम उस टाइम फिर चाहे इसको डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। 1 अपॉन लीनियर वाला आपको क्लियर हो गया। ये देखो सेम बेस है, यहाँ क्या है, नाउ सी इस क्वेश्चन में डिग्री 2 और नीचे भी डिग्री 2, ये मेन है। इट मीन्स दिस वन इज नॉट प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये लिखा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना आप जानते हैं, हाउ टू डिवाइड दिस। ठीक है, डिवीजन के लिए ये सिंपल वे आपके पास वही, किसको डिवाइड करना, x² + 1 को किससे डिवाइड करेंगे, x² - 5x + 6 से आपने डिवाइड करना। और जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या होगा 1 से, सो यू विल गेट x² - 5x + 6, डिवाइड कर दिया। सो व्हाट यू विल गेट, 1 से ही जा रहा है ना, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, दिस कैंसर, +5 and 1 6x and -6, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। सो यू कैन सी x² - 5x + 1, x² + 1 डिवाइड कर रहे हैं बेटा हम, x² - 5x + 6 से x² - 5x + 6, तो साइन इधर मेरे ख्याल से गलत लिख दिया है ये बेटा, ये 5x - 5 नहीं होगा, यहाँ फिर क्या होगा 6x - 6 होगा। ध्यान दीजिए, चेक कर लो एक बार फिर, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हमने तो नहीं की है। एक मिनट, ओह यहाँ गलत लिख दिया हमने, ठीक है, ये हमने, ये बेटा ऊपर x की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट माइनस होगा, तो ये क्या आएगा 5x और 1 माइनस, देखो 1 - 6, दैट इज -5, नहीं गलत लिख दिया था ना। ये इस तरह की मिस्टेक का ध्यान देना। देखो ये 1 किसके, क्योंकि लाइक टर्म जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखो प्लस, तो ये +5x और -6 + 1 -5, ठीक है।
ये आपका आ गया 1 + 5x - 5, ये आ गया ना कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस। अब आपके पास ये x² + 1 को हम लिख लिया। तो बोलने का मतलब अब आपके पास ये जो है ये फ्रैक्शन कैसी है, इम्प्रॉपर आ गई, इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। इसको स्प्लिट करने का वे आपको जो अभी पिछली बार क्वेश्चन में बताया, a/x - 2 + b/x - 3। ठीक है, यहाँ इसने बिल्कुल वैसे ही किया। देखो a इंटू, अब इससे मल्टीप्लाई किया 5x - 5, a इंटू x - 3 मीन्स आप लोग इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, x - 2 कट गया और यहाँ x - 3 कट जाएगा तो x - 2। वी गॉट दिस पॉइंट। अब इनके कोएफिशिएंट और इक्वेट करने, तो यहाँ क्या है a + b, x का कोएफिशिएंट a + b किसके इक्वल होगा 5, a + b = 5। और दूसरा -3a - 2b वो किसके इक्वल, -3a - 2b किसके इक्वल होगा, -3a - 2b। ये -3a है, -2b, -5 है, तो तीनों का माइनस फिर कट गया, तो इसलिए 3a + 2b = 5 बन गया। और 2 इक्वेशन है, अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी सॉल्व करो, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट या एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी है। और सेकेंड अप्रोच जो मैंने बताया क्या, कि जैसे पुट x = 3, ये 0 हो जाएगा। 5 3 जा कितना हुआ 15, 15 - 5 कितना हुआ 10, और 3 - 2 कितना हुआ 1। तो b की वैल्यू आपकी कितनी बनी 10। और अगर x - 2 को पुट करो 0, स्टेप ऊपर से देख सकते हैं, ये जो मैंने लिखे ये पुट करना है ऐसे, जैसे यहाँ बता, ठीक है, तो वैसे यहाँ पुट करना। अब दूसरा फैक्टर आपके पास है, उसको पुट करो 0। सेकेंड फैक्टर क्या है, x - 2, इसको 0, x = 2 से ये टर्म खत्म हो गई 0, 2 - 3 1 हो गया, a बना, 5 2 जा 10 - 5 बन गया। ठीक है ना, 10 - 5 = 5, तो यहाँ बना -a = 5 मीन्स a = -। आगे इंटीग्रेशन तो इजी है, log of x - 2 और log of x - 3। ठीक है, सो यू गॉट दिस पॉइंट। आगे बेटा वो dx इंटीग्रेशन x, क्योंकि 1 अलग था। सेम बेस से देखो आगे वाला, अब मैं आगे कुछ नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आपने इनको कोशिश करनी है करने की, कंप्लीटली सॉल्व है पूरा क्वेश्चन। देखो लीनियर रिपीटेड फैक्टर है, तो 2 बार लिखा जाएगा, a/x + 1, b/x + 1 होल स्क्वायर, c/x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस टर्म से मल्टीप्लाई 3x - 2, यहाँ x + 1 है तो ऊपर क्या बचेगा x + 1 × x + 3, यहाँ x + 1 होल स्क्वायर है तो ऊपर क्या बचेगा x + 3, यहाँ c को मल्टीप्लाई होगी इस टर्म से, तो x + 3 कट x + 1। सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई किया। अब देखो बेटा x² की टर्म में देखो a + c, a + c, x² तो है ही नहीं, तो a + c क्या होगा 0। आगे आपके पास x की टर्म देखो 4a + b + 2c, ये हो गया, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 3, ये लिख लिया। और आगे थर्ड कांस्टेंट टर्म देखो 3a + 3b + c = किसका होगा कांस्टेंट -2। ठीक है, अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए आपके ऊपर, जैसे ए और सी में इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशनों से बी को खत्म करो। सिंपल वे अगर मैं बताऊं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से बी को खत्म करो। बी को खत्म किया, 3 से मल्टीप्लाई कर लो और आपस में माइनस करो। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ए और सी में। फिर 2 इक्वेशन ए और सी में, तो उनको सॉल्व कर लो। दिस वन इज दी वे। यस, अगर बिल्कुल दूसरे अप्रोच से चलना है तो वहां से फिर आपने वैल्यू वैसे ही पुट करनी, जैसे नंबर 1 x की वैल्यू x + 1 को 0 बनाना है तो -1 पुट करो, तो ये तो खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या, -1 पुट करके ये बना -3 - 2 -5। यहाँ क्या बनेगा, देखो ये भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -1, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 - 1 2, तो -5 = 2b, so that is b = -5/2। You can use that approach also. Have you got my point? पता लग रहा है। सेम वे से दूसरा फैक्टर आप क्या करो, x + 3 0 कर दो। अगर x की वैल्यू मतलब -3, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपको c की वैल्यू मिलेगी, देखो -3 पुट करो, -9 और -2 कितना हुआ -11,
और यहाँ -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, तो 11/4 है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, इनको समझना है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप सोचे तीसरी वैल्यू क्या पुट करनी है। तीसरी बेटा आप कुछ भी पुट कर लो, x = 0 कर लो, सिंपल वैल्यू ए बी सी में एक इक्वेशन मिलेगी, बी और सी की वैल्यू मिल चुकी है, ए की वैल्यू मिल जाएगी। प्लीज ट्राई जरूर करेंगे साथ में, फिर आपको अपने आप पता लग जाएगा जिस भी बेसिक कंफर्टेबल आप फील। अदरवाइज देखो, जब ये बन जाता है, स्प्लिट हो गया ना, a अपॉन फर्स्ट b अपॉन स्क्वायर दिस, इसकी इंटीग्रेशन 1/x+1, ये लॉग हो गई, और ये फंक्शन की पावर n आ गई, लीनियर की पावर n मतलब x+1 की पावर -2, तो x+1 की पावर -2 की इंटीग्रेशन क्या हो गया, x+1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1, क्या बना, -1 बना, और ऊपर भी -1, तो इसलिए लिखा है 1/x+1, और माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2 है, और ये आगे लॉग में। वी गॉट दिस पॉइंट। तो चलिए आज आप लगभग इन टाइप्स को करेंगे, बेसिक से कंसेप्ट को करेंगे। कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में स्पेशली अगर आप अंडरस्टैंड करें, इजी है क्वेश्चन, सारी पावर इवन है, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस x स्क्वायर को y पुट करो, इंटीग्रेशन को नहीं चेंज करना, जस्ट y, मतलब क्या बन गया, y/y+1 y+4, डिग्री तो न्यूमरेटर की लेस ही है डिनोमिनेटर से। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना दो, इसका बेनिफिट यही हो गया ना, मतलब अब नीचे लीनियर बन गई। अगर आप इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक छोड़ते तो बड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाना था, और अब ये बड़ा इजी बन जाएगा, a/y+1 b/y+4, और यहाँ से आप बेटा a और b की वैल्यू, तो ये जो इंटीग्रेशन है देखो, a और b की वैल्यू आएगी -1/3/y+1 4/3/y+4, लेकिन y को फिर चेंज कर दो किसमें, x स्क्वायर, y की जगह x स्क्वायर लिख दिया है, यहाँ भी y की जगह फिर x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो हुआ क्या कि बोलने का मतलब इसने इस क्वेश्चन को इजी बना दिया। अदरवाइज आपको पता था जब इरिड्यूसिबल लिखते हैं नीचे, तो ऊपर लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखना पड़ना था, ax + b, फिर वो लेंथी चलना था आपका काम, 4 वेरिएबल हो जाने थे, ax + b और आगे cx + d अपॉन दिस। ठीक है, तो यहाँ से इजी पड़ गया, और इसकी इंटीग्रेशन आती है आपको 1/x² + a²। ठीक है, tan इनवर्स में 1/a tan इनवर्स x/a, ये देखो दोनों आंसर tan इनवर्स में, यहाँ 1 क्योंकि ये 1 ही है तो ये तो सिंपल tan इनवर्स x, यहाँ 2 स्क्वायर है तो 1/2 tan इनवर्स x/2। गॉट? ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन की, ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए की, इंटीग्रेशन को चेंज नहीं किया, ये सिर्फ इंटीग्रेशन देखो मैंने x स्क्वायर वाले की ही की, टू मेक द पार्शियल, और कब, जब इवन पावर हो, सिर्फ तब। ठीक है, आगे देखो इस क्वेश्चन में, अब ये ट्रिग्नोमेट्री में चला गया, नो डाउट। ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक भी आ गई, ऊपर भी आ गई, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, तो अब आप कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। पहला काम देखो, ये कॉस है, ये साइन है, कॉस फाई डी फाई कहीं आइडिया दे रहा है कि साइन को पुट किया जाए, लेकिन इस कॉस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, साइन फाई को टी पुट कर लेंगे, तो यहाँ से बन गया dy = cos फाई dy, तो इस कॉस को चेंज कर लेना 1 - sin स्क्वायर करके, ये देखो ये कर दिया 3 sin फाई - 2 cos फाई, इसको ये चेंज करेगा 1 - sin स्क्वायर फाई, तो इसलिए 1 - y² - 4y लिख दिया एज यूजुअल, ऊपर 3y - 2। सॉल्व करके अल्टीमेटली क्या बना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और नीचे रिपीटेड फैक्टर बन गया, देख लो रिपीटेड बने तो a अपॉन फर्स्ट y - 2 b अपॉन y - 2 होल स्क्वायर। देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ट्रिग्नोमेट्री से। पार्शियल फ्रैक्शन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ पोलिनोमियल में ही करनी है, जब ऊपर पोलिनोमियल हो नीचे पोलिनोमियल, तो ट्रिग्नोमेट्री है, यह सब्स्टिट्यूशन से उसको पोलिनोमियल में चेंज कर सकते। तो ये वैल्यू तो अब आपको लग गया पता कैसे निकालनी है a b की, बाकी इंटीग्रेशन इजी है। तो बोलने का भाई ये स्टेप अब आपकी प्रैक्टिस का है, ए बी निकालना और इसको स्प्लिट कैसे, ये मेन प्रैक्टिस है, मतलब यहाँ तक पहुंचना है। आगे वाली इंटीग्रेशन है, पीछे की एक्सरसाइज है, अगर आपकी क्लियर होगी तो वही है, बाद में देखो y को चेंज करना। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिक है, यस यू कैन डू,
और फैक्टर देखो ये लीनियर है और ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक आ गया ना, यही है थर्ड टाइप। रिपीटेड भी आ गया था, लीनियर भी आ गया, ये थर्ड टाइप। तो इट मीन्स दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक है, नीचे फैक्टर बने हुए हैं, इससे आगे कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। तो ए अपॉन लीनियर फैक्टर, और मैंने कहा इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक में बी एक्स प्लस सी, बाकी मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, वी गॉट दिस पॉइंट, पता लग गया। अब बाकी बेटा वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर वही ऑप्शन है, यस एक्स 0 पुट कर सकते हैं, एक्स माइनस 2 पुट कर सकते हैं, और एक आधी वैल्यू एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि जब ए बी सी तीन कांस्टेंट होंगे तो तीन वैल्यू पुट, एक एक्स इक्वल टू माइनस 2 पुट करने पर देखो ये सीधा 0 हो जाएगा ना 0। यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, तो 5a, और इधर 4 और प्लस 1 5, 5 में से माइनस 2 गए तो 3। तो आंसर देखना ए की वैल्यू 3/5 होनी चाहिए, देख। या फिर इसी बे से करो, इस बे से करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, ए की वैल्यू, अब आपने एक्स स्क्वायर की टर्म देखो, ये की इधर, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, किया होगा आपके पास कि नहीं, आगे शो नहीं किया तो एक स्टेप और लिख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी से करेंगे एक्स को तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2c, देखो बड़ा, तो यहाँ a प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर के ऑप्शन क्या है a प्लस बी, सो a प्लस बी किसके इक्वल आएगा 1 की, और आगे x के पर आ जाओ, तो यहाँ है 2b प्लस सी, और है कहीं x नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2b प्लस सी इक्वल टू 1, और आगे कांस्टेंट टर्म a प्लस 2c, तो ये आ जाएगा a प्लस 2c इक्वल टू 1। ये देखो ये इक्वेशन लिखी हुई, a प्लस b1 2b प्लस c1 a प्लस 2c1, मतलब क्रैमिंग नहीं करना बेटा, इनको अंडरस्टैंड करना, एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करिए आज, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के करो, बिल्कुल कल संडे है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी, यू कैन डू वेल। ये देखिए ये क्वेश्चन था, स्प्लिट हो गया, आगे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये देखो ये आपका 1 अपॉन लीनियर, और यहाँ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अब आपका आता है, ये पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं, अलग अलग डायरेक्ट कर देंगे। देखो ये फर्स्ट का आपके पास एज यूजुअल है, ये टर्म 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और इधर स्प्लिट कर दो, देखो डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/5 हमने बात, और आगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो लॉग आ जाता है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और आगे ध्यान, ठीक है। तो मैं कम से कम अगर जो आज की एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू, सेकंड के फैक्टर x माइनस 3x प्लस 3, थर्ड यू कैन डू, सारे लीनियर है, यस ट्राई करो बेटा, छोड़ने नहीं है, ठीक है। ऐसी जगह पे आप क्या करो, कोएफिशिएंट x को -1 बना लो, ऊपर भी फिर ये क्वाड्रेटिक है और न्यूचे भी क्वाड्रेटिक है, तो इसको पहले डिवाइड कर लेना, मेरा वन बोल रहा, इसको ना भूले, क्योंकि ये इसको हम बेटा फॉरगेटिंग रूल भी कहते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो हम जनरली डिवाइड करना भूल जाते हैं, ठीक है, जहाँ ज्यादा है डिग्री वहां तो कर लेते हैं। ये देखो आराम से हो जाएगा, ये आराम से, ये रिपीटेड फैक्टर है, ठीक है, यहाँ इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, माइनस कॉमन देखो सिंपली बन जाएंगे, पहले दो में x कॉमन ले लो, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर x -1, यहाँ -1 कॉमन ले लो, यहाँ भी x -1, फिर x -1 कॉमन, एक्स स्क्वायर -1, और उसको फर्दर फैक्टर कर, ठीक है, यू कैन डू, ये भी फैक्टर हुए पड़े, ये हुए पड़े, यहाँ देखो ये डिवाइड करना पड़ेगा इस केस में, पता लग रहा है क्यों करना है, तो मैंने बता दिया, डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर, फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ पर भी बेटर है ये माइनस बाहर निकाल लो, x -1, तो बोलने का मतलब बेटा ये बिल्कुल है, इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर होने गलत सारे फैक्टर ऐसे बनेंगे, x -1 x प्लस 1, और आगे x4, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 3 फैक्टर,
a upon x minus 1, b upon x plus 1, cx plus d upon x square plus 1। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है, चलिए मेरे को लगता है अगर कम से कम आप इतना कर देंगे तो बाकी आगे वाला चाहे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कम से कम आप यहाँ तक को बेटर करके, वी गॉट माय पॉइंट, कम से कम यहाँ तक करके 15 क्वेश्चन आज के लिए काफी है। एग्जाम्पल करिए और यहाँ 15 तक करिए। अगर कोई डाउट होगा उसके बाद हम आगे चलेंगे, अगर डाउट है तो पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छे से बेटा कंसेप्ट को रिवाइज करो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, और ये फार्मूले अच्छे से सारे लर्न करो, आप बार बार इन फार्मूलों को पढ़ते रहा करो, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा ये है। और फिर इंटीग्रेशन बेटा टफ लगेगी, बाद में बोलेंगे सर सब आ गया, इंटीग्रेशन का पता नहीं लग रहा है, क्योंकि रीजन यही होते हैं, हम कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, यू कैन